اور یہاں آپ کو بتائیں لال ٹماٹر پر لال نوٹ فکس، ڈبل سینچری مکمل، پیاز، ادرک، لہسن سمیت سبز مسالہ جات مہنگے ترین ہو گئے۔ فیصل آباد میں رواں ہفتے سبزیوں، پھلوں اور برائلر مرغی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ برائلر مرغی کا گوشت بغیر کسی رد و بدل کے 376 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔ ٹماٹر 200، پیاز 150، ادرک 335، لہسن 300، سبز مرچ 235 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ آلو کچا چھلکا 88، مٹر 260، ٹینڈا 150 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ سیب کالا کولو 230 روپے کلو، کیلا 90 روپے درجن میں بیچا جا رہا ہے۔ چنیوٹ نے چند ایک چیزوں میں فیصل آباد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آلو 110، ادرک 350 اور لہسن 320 روپے میں بیچا جانے لگا۔ عوام بڑھتی قیمتوں پر سٹپٹا اٹھی، سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ ہم نے سبزی خریدنے آئے تھے، جو سبز مسالہ زیادہ ہے وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور جو سبزیاں ہیں، جو مقامی سبزیاں ہیں، وہ اب کچھ کم ہے، 100 سے کم نہیں ہے ویسے، تو ہماری پہنچ سے دور ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹماٹر تمام حدیں عبور کر گیا، 280 روپے کلو پر فروخت ہونے لگا۔ آلو 110، پیاز 140 اور ادرک لہسن 300، جبکہ سبز مرچ 250 روپے میں ملنے لگی۔ باہر سے انہوں نے پیاز منگوایا ہے، ایران سے منگوایا ہے، ترکی سے منگوایا ہے، مصر سے منگوایا ہے، وہ پیاز مہنگا مل رہا ہے۔ فیصل آباد میں 20,000 روپے کی بوری ہے، اس حساب سے یہاں پر 1,000 روپے پنسیرا پڑنا چاہیے، 200 روپے کلو ہے۔ خریدار بڑھتی مہنگائی سے شدید پریشان اور حکومت سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا سیاسی جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ رہنما بن کر اصل مسائل پر بھی توجہ دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وہ کون ہے جو 12 مہینے ہمارے کھانوں میں شامل رہتا ہے۔ ہلکی پھلکی ڈش تیار کرنی ہو یا پھر VIP کھانا، جی بات ہو رہی ہے آلو میاں کی۔ آلو کی قیمت میں ایک سال میں کتنا رد و بدل ہوا، جان لیجیے اس رپورٹ میں۔ موسم جو بھی ہو، سبزیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جو تبدیل نہیں ہوتا وہ ہے آلو۔ 12 مہینے کھانوں میں استعمال ہونے والے آلو کی قیمت میں ایک سال کے دوران 50% اضافہ ہو گیا۔ نیا آلو ایک سال میں 40 روپے اضافے کے بعد 50 سے 90 روپے پر پہنچ گیا۔ پرانا آلو ایک سال میں 30 روپے اضافے کے بعد 30 سے 60 روپے پر پہنچ گیا۔ آلو سفید ایک سال میں 19 روپے اضافے کے بعد 15 روپے سے 34 روپے پر پہنچ گیا۔ نورپور کے سبزی فروشوں نے آلو کی اقسام کے ساتھ ساتھ ریٹس بھی بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نیا آلو ہے، اس وقت اس کا ریٹ جو ہے نا 100 سے اوپر ہے، 190 جا رہا ہے۔ یہ ہیں پیپسی آلو ہیں۔ پیپسی آلو جی، یہ پیے بھی جاتے ہیں؟ نہیں یہ بس کھائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کون سے آلو ہیں؟ یہ پرانے آلو ہیں۔ ان کے ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اس میں ریٹ میں پچھلے سال سے 20-30 روپے زیادہ ہوئے۔ آلو خریدنے آئے خریدار کا کہنا تھا کہ سستے آلو مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن اس بار اضافہ زیادہ ہوا ہے۔ 70 روپے کلو لے بھائی یار۔ کس کام کے لیے یہ آپ نے اس سے سبزی بنانی ہے، کیا بنانا ہے؟ سبزی بنانی ہے۔ کتنا اضافہ ہو گیا اس کی پرائس؟ اس کی پرائز میں 40 روپے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آلو کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جائے تاکہ شہریوں کو سستا آلو میسر آ سکے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہائے رے مہنگائی، غریب کی دہائی، سستے بازار بھی مایوسی بانٹنے لگے، عوام کے ریلیف کی امید مایوسی میں بدلنے لگی۔ ہائے مہنگائی، غریب کی دہائی، سستے بازار بھی مایوسی بانٹنے لگے، عوام کے ریلیف کی امید مایوسی میں بدلنے لگی۔ فیصل آباد کے اتوار بازار جو کبھی غریب کے لیے نعمت تھے، آج وہاں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں۔ سبزی، برتن، جوتے، ہر چیز کے دام بڑھ چکے ہیں۔ غلام محمد آباد کے سستے اتوار بازار کو بھی خریداروں نے مہنگا بازار قرار دیا۔ بھائی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بازار میں پھر سستا بازار لگا ہوا ہے، اتوار بازار، لیکن ادھر سستے کے علاوہ ہر چیز مل رہی ہے، سستی چیز کچھ بھی نہیں مل رہا، ریٹ ہی آسمانوں کو باتیں کر رہے ہیں۔ جنگ میں بھی مہنگائی کے ماروں کو سستے بازار میں خواری ملنے لگی۔ جرسی، جرابیں اور جوتے سب کچھ مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے تقریباً جو ہم جرسی لینے آتے تھے لنڈے کی، غریب آدمی لنڈے کی چیز خریدنے آئے گا اور کیا خریدنے آئے گا، کیوں وہ مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، وہ 200-250، اب وہی لنڈے کی جرسی 500، 600، 700 روپیہ ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سستے بازاروں میں قیمتوں کو چیک کیا جائے، سستے بازاروں میں حقیقی ریلیف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب جھنگ میں DHQ ہسپتال کا عملہ چھٹی گزارنے میں مصروف رہا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سٹی سکین ڈپارٹمنٹ کو تالے لگ گئے، سٹی سکین کروانے کے لیے آنے والے مریض خوار ہو کر رہ گئے۔ ہسپتال کا عملہ مریضوں کو نجی ہسپتالوں سے سٹی سکین کروانے کا مشورہ دینے لگا، تاہم ہزاروں روپے کے سٹی سکین کے باعث نجی ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی۔ مریضوں کی جانب سے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی حدود میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر پر پابندی عائد،
खिलाफ वर्जी पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जवाबदेह होगा। इमारतों के नक्शे एक मरतबा फिर से चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट के मरासले के बाद डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने मुकामी हुकूमतों के चीफ अफसरान को इन अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। कमर्शियल इमारतों के नक्शे चेक किए जाएंगे, गैर कानूनी इमारतों को सरमुभर कर दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं, मोटरवे पुलिस का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। मोटरवे पर गाड़ियों की हद रफ्तार में कमी कर दी गई। अब ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकेंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से रावी टोल प्लाजा तक हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर भी हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर फी घंटा पर चलाई जा सकेगी। डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर अलका से यारक तक हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा होगी। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद रफ्तार से तजावुज करने पर चालान और जुर्माना होगा। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले और FIR दर्ज न होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद के चौक घंटा घर में पावर शो किया गया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत मुकामी क़यादत और कारकुनान ने शिरकत की। घंटा घर में मुनाकिदा पावर शो में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आपको खुशखबरी देने आया हूं कि इमरान खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इमरान खान के कत्ल का मंसूबा अल्लाह के फजल से नाकाम हो गया। इमरान खान ने बता दिया है कि मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। इमरान खान ने वजीराबाद से लॉन्ग मार्च की क़यादत करने की मुझे हिदायत की है। 72 घंटे गुजरने के बाद भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। फैसलाबाद वालों से पूछने आया हूं कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं। मुद्दई की मंशा के मुताबिक FIR का इंदराज इंसाफ का तकाजा है। घंटा घर मुनाकिदा एहतजाजी जलसे में सिटी जनरल सेक्रेटरी हसन नियाजी, चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज, साबिक MNA डॉक्टर निसार, MPA मलिक उमर फारूक, आदिल परवेज, शकील शाहिद, फिरदौस राय, टिकट होल्डर शेख सलमान आरिफ, साबिक MPA हाजी इस्माइल, साबिक सदर चैम्बर एहतशाम जावेद, रहनुमा कलीमुल्ला कमोका, वलीद अरशद डोगर, असद महमूद, ज़िया आलमदार, लॉयर्स विंग से गौहर बलोच, शहबाज अमीर आवान, अकलियती MPA हसबूक गिल, साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन, सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा और साबिक वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने शिरकत की। फारूक हबीब ने हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को आड़े हाथों लिया। इमरान खान को जैसे अस्पताल से रुखसत किया जा रहा था तो इमरान खान ने कहा कि ठहरो, मैं अस्पताल जाने से पहले मैं चंद बातें करना चाहता हूं। और आपको बताऊं उसने क्या बात की। उसने कहा कल नहीं परसों मेरा तारीख आजादी का मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की नजरशाह स्ट्रीट में बानी और चेयरमैन हसन लिमिटेड एस्पायर एजुकेशनल एंड मीडिया ग्रुप सैयद उमर नजर शाह से मुलाकात हुई। इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौका पर रुकने कौमी असम्बली फैजुल्ला कमोका, रजा नसरुल्लाह घुमन, शेख खुरम भी शाह महमूद के हमरा थे। सैयद उमर नजर शाह के साहिबजादे सैयद मीर नजर शाह ने शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। उमर नजर शाह ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान पर हमलावर मुल्ज़िमान की पुष्ट पनाही करने वाले अफराद को जल्द बेनकाब करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, टैक्स गुजारों की मुश्किलात कम न हो सकी। सजा मौजूद मगर इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर करने की ऑप्शन ही मौजूद नहीं। FVR एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की कैटेगरी में रजिस्टर्ड टैक्स गुजार शराकत दारों के शेयर्स की तफसीलात रिकॉर्ड में फराहम करने के पाबंद हैं और बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर न करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। लेकिन रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिशियल ऑनर की तफसीलात जाहिर करने की ऑप्शन ही मौजूद नहीं।
तकनीकी खामी के बायस टैक्स गुजार परेशानी का शिकार हैं कि कहीं तफसीलात फराहम न करने पर जुर्माना ना भुगतना पड़ जाए। दूसरी जानिब कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी नॉन फाइलर्स में शामिल। फेस्को के 4000 से जायद मुलाजमीन ने काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। FBR को इनकम टैक्स गोशवारों में बड़े शॉर्टफॉल का सामना है। माहाना 50,000 रुपए या इससे जायद तनख्वाह लेने वाले अफराद इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने की सबसे बड़ी वजह सजाएं न मिलना है। FBR और मुतालिका सरकारी महकमे नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां नहीं करते। और अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन बल्दियाती नुमाइंदों की आवाज बन गया। पंजाब हुकूमत को जल्द बल्दियाती एक्ट बहाल करके इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत जारी कर दी ताकि अवाम को उनके नुमाइंदगान मिल सकें। आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात की गूंज सुनाई देने लगी है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द इंतखाबात का इंदिया दे दिया। हुकूमत पंजाब से इंतखाबात की तारीख मांग ली गई। जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात को ताख़ीर का निशाना न बनाया जाए। 2021 के बाद बल्दियात मफलूज हैं। 3 माह में इंतखाबात करवाना लाजमी है। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भर्तियां शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। दर्जा चहारम में भर्तियां की जाएंगी। माजूर अफराद के कोटे पर उम्र की छूट दी जाएगी। मुकामी हुकूमतों से खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली गई। दर्जा चहारम में खाली सीटों पर भर्तियां हो सकेंगी। चीफ अफसरान अखबारात में इश्तिहार देंगे। माजूर कोटे पर उम्र में छूट दी जाएगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल कॉलोनी में 14 करोड़ माहियत की सुई गैस पाइपलाइन का मामला। मियां ताहिर जमील ने PTI रहनुमा मियां फारूक हबीब के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मियां ताहिर जमील का कहना था कि हमारे अवामी मंसूबों पर काम रुकवाकर PTI क्या साबित करना चाह रही है। 14 करोड़ रुपए मालियत का सुई गैस के मंसूबे पर अल्लामा इकबाल कॉलोनी में जारी काम रुकवाया गया और मुलाजमीन को जेल पहुंचाया गया। फारूक हबीब अपने औचे हथकंडों से बाज रहे। अगर मरकजी हुकूमत आवाम के लिए कुछ कर रही है तो उसे करने दे। नामी जो बंदा है ये कोई इंतशार फैलाने का जो सरगना है। मैं ये समझता हूँ कि गरीबों के घरों के चूल्हे बंद करने वाला फ़ारूक हबीब है। फ़ारूक हबीब को होश के नाखून लेने चाहिए। हम किसी सूरत भी इलाके के तरक्याती कामों को नहीं रुकने देंगे। हम अपने इलाके के गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। 14 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी आबद शेर अली साहब ने और हमने मिलकर ये सुई गैस की लाइन जो थी इस पर काम शुरू करवाया था, जिससे तकरीबन 10 लाख लोगों को रिलीफ मिलना था। यहाँ पर घरों में गैस नहीं आती। गरीब मज़दूर जो हैं वो बेचारे जब मज़दूरी पर सुबह जाने लगते हैं उनको खाने को नाश्ता नहीं मिलता सुई गैस बंद होने की वजह से। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पैसे ज्यादा दो ठेला लगाओ वरना भाग जाओ। पहाड़ी ग्राउंड से मल्हिका रोड पर लगाए गए आरजी इतवार बाजार से ठेले उठवा दिए गए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। पहाड़ी ग्राउंड से मल्हिका रोड पर लगने वाले आरजी इतवार बाजार में स्टॉल उठवाने पर बच्चों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन को आड़े हाथों लिया। बच्चे का कहना था कि हमसे ठेला लगाने के पैसे मांगे जाते हैं। 50 रुपए तो दिए, अब 100 की डिमांड की जाती है। ना देने पर ठेला उठवा दिया जाता है। हमने वहाँ पर गुजारा आए तो कहते पैसे दो। हमने क्या करा, हमने 50 रुपए करा, 100 दो हमें पास। हमने कहा हमारे पास और पैसे नहीं है तो कहते हमारा माल ठारो। वो हमने वहाँ पर खा कर मारा। वो देखें। क्या बेचते हो आप? कपड़ा बेचते हो? अच्छा, उन्होंने आपसे 100 रुपए मांगे हैं स्टॉल के और आप 50 रुपए दे रहे हैं। हमने 50 दिया, उन्होंने कहा नहीं 100 देना। हमारे पास नहीं 100 आया था, उन्होंने माल मारा वहाँ पर मारा। ठेले वालों का मजीद कहना था कि हमारे ठेले उठवा दिए जाते हैं जबकि दूसरी जानिब लगे ठेले उठवाए नहीं जाते। या तो कार्रवाई सबके लिए एक जैसी हो या ना हो। आज हम बाजार लगाने आए, अपने टाइम पर आए तो हमने चादरें बिछाई हैं, अपना स्टॉल लगाने लगे तो कमेटी वालों का डाला आ गया, कहते उठा ले। हमने कहा कल ही उठा ले, हम आपको पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते नहीं आज नहीं लगने देना। पैसे भी ले जा रहे हैं और अपनी दहशत भी दिखाई जा रहे हैं। वहाँ पहाड़ी ग्राउंड से मल्हिका रोड पर लगे आरजी इतवार बाजार में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की दोगली कार्रवाई पर ठेले वाले नाला नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
दूसरी जानिब झंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली शहरियों को ले डूबी। रसूलपुरा में फिल्ट्रेशन प्लांट और सरकारी स्कूल के बाहर नालियां उबल पड़ी। जंग में सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए इंतजामी नुमाइंदों की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद शहरी आए रोज सीवरेज के मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। महल्ला रसूलपुरा में फिल्ट्रेशन प्लांट और सरकारी स्कूल के बाहर नालियां गंदा पानी उगलने लगी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए गए। सर, यहाँ इन्होंने नई सीवरेज डाली है, जबकि वो मुकम्मल तौर बंद है। पानी गली में खड़ा है। ये स्कूल देख लें, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कई दफ़ा गिरे हैं यहाँ पे, बच्चे जख्मी जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लाखों रुपए के फंड्स की मौजूदगी के बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरियों को सहूलियात की फराहमी में यकसर नाकाम है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली और खाबे खरगोश के मज़े शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी भरने के आने वाले शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अदम तवज्जो की नज़र हो गए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर फैसलाबाद के सीवरेज के मसाइल हल करना वासा के लिए चैलेंज बन गया। बावचक की गलियों के सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। इलाका मकीन कहते हैं 6 माह से सीवरेज के मसाइल हैं। मसाजिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। मच्छरों की अफजाइश के सबब मलेरिया से बच्चे बीमार हो रहे हैं। तकरीबन 6 माह से है ना बुरे हालात हैं और नमाजी हजरात के लिए मस्जिद में नमाज के लिए जाना एक मुश्किल मरहला बन गया है। वासा में बेतहाशा मरतबा हमने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ज़ीरो है और इसी की वजह से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गटर भी बनवाए हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से पैसे देकर नकासी आप करवाते रहे हैं। इलाका मकीनों ने वासा से नोटिस लेने और नकासी आप यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਸਲ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ नहीं तैयार। शहर फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हल ना होना वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर की सफाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहर की गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी मौजूद है, तो वहीं पर सरकारी इमारतों के गिर्द भी सीवरेज का पानी जमा होने लगा है। सीवरेज का पानी झंग सिटी के जच्चा बच्चा अस्पताल के गिर्द मौजूद है, मगर जिले इंतजामिया बेखबर है। नहीं देखो थोड़े सामने ही है, मच्छर की वजह तो बच्चे बीमार हो रहे हैं कि सरकारी इलाके के सरकारी अदारे के नाल तो सफाई होनी चाहिए है। बिल्कुल ऐसे इंतजामिया ने कोई देखभाल नहीं है, काफी अरसे तो इस तरह ही है। शहरियों ने कहा कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान लंबी तान कर सो रहे हैं और शहर सीवरेज के पानी में डूब गया है। बीमारियों का सबब बनता है पानी। दूसरी बात ये है, बारिशों का मौसम बता रहे हैं, अगर बारिशें आ गई तो मजीद गंदा माहौल हो जाएगा इधर का। ये आबादी है जो पीछे बच्चे बीमारियों का शिकार होंगे, इसलिए ये म्यूनिसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट है कि ये इस पानी को साफ करें। सीवरेज का पानी इलाके में तौफुन के साथ अस्पताल की हिफाजती दीवार को भी नुकसान पहुंचाने लगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में चंद माह कबल लगे ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो गए। कौन सी बत्ती चल रही है, कौन सी नहीं, शहरी कंफ्यूज होकर रह गए। शोहदा चौक पर लगा ट्रैफिक सिग्नल भी खराब हो गया। शहर का मसरूफ चौक एक जानिब लारी अड्डा तो दूसरी जानिब जनाब चौक है। शहरी का इस मौका पर कहना था कि जनाब बाग वाली तरफ से आने वालों को पता नहीं चलता कि कब रुकना है। अक्सर ही यहाँ ट्रैफिक जाम रहती है। मुतालिका हुकाम को चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल को चालू करे। दूसरी जानिब फेस्को में 86 आसामियों पर भर्तियों का मामला के 17 पर तहरीरी इम्तिहान के लिए फेस्को ने एनटीएस टेस्टिंग एजेंसी की खदमात हासिल कर ली। एनटीएस जूनियर इंजीनियर्स की आसामियों पर दरख्वास्त गुजारों के तहरीरी इम्तिहानात लेगी। उम्मीदवारान एनटीएस के तहरीरी इम्तिहानात पास करने के बाद भर्ती होंगे। सैकड़ों उम्मीदवारान की जानिब से फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स के लिए दरख्वास्तें दे दी गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।